तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा एंड देन तुम लोगों को रिकॉर्डिंग इवेंचुअली मिल जाएगा, है ना? So as per concept is concerned for today lecture is it is oxidation number. Oxidation number or oxidation state. So as per definition is concerned, if let's say all polar covalent bond, if all polar covalent bonds of given molecule is assumed to be 100% ionic. And I'm repeating again, if all polar bonds or polar covalent bonds of a given molecule is assumed to be 100% ionic, then the charge, then the charge appeared on corresponding atom. The charge appeared on corresponding atom is known as their oxidation number. उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते थे, और इसी का नाम यू कैन से इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल we'll see the meaning of polar covalent bond क्या है, ionic bond क्या है, या non polar covalent bond क्या है. But suppose अगर मैं किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के सारे जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उनको मैं 100% आयोनिक एज्यूम कर लूं, तो जो चार्ज अपीयर्ड होगा ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम is known as their oxidation number or oxidation state. I can just repeat the same thing जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी पूछा था तुम लोगों से. For example, if this compound is FeSO4, so we already know up to 10th class in the case of FeSO4, as per sulfate anion is concerned, it having -2 charge. ये सब बच्चों को पता है कि सल्फेट आयन हैविंग -2 चार्ज. हाँ देखो, जब मैं ऐसा पूछूंगा तो तुम लोग आंसर कर सकते हो मुझसे, है ना? तो डू यू थिंक बेटा सबको ये पता है कि सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है? ये पता है कि नहीं पता है? पता है. हाँ, ये थोड़ा सा तुम लोग आइडिया होना चाहिए. सल्फेट है -2 चार्ज, so obviously this Fe2 plus should have +2 charge, है ना? So here you can say this compound may be simply written as, let's say, ferrous sulfate, और किसी ने बुक में इसको ऐसा लिखा हुआ देखा हो सकता था, iron 2 sulfate, है ना? इस कंपाउंड को हम लोग नाम ऐसा भी दे सकते थे, either it is ferrous sulfate or it is iron 2 sulfate. Iron 2 means again the oxidation number या oxidation state of iron is +2 है. तो जो हम लोग ये +2 लिख रहे हैं या हम लोग ये 2 रोमन्स में लिख रहे हैं, it is respective their oxidation number और oxidation state, है ना? मुझे जो डेफिनेशन है जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है? नहीं सर. We'll just try to see the meaning of covalent bond, non-covalent bond, या ionic bond or something like this. So do you have any idea कि भी कुछ ionic bond है, covalent bond कुछ होता है ना? So one by one मुझे समझाने की कोशिश भी करना तुम लोग कि
कौन सा बॉन्ड आयोनिक है, कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है. फॉर एग्जांपल लेट्स से this is the bond between hydrogen and hydrogen is one of the bond. Another bond may be suppose H and Cl here, and another bond may be let's say Na and Cl here. So as per hydrogen bond is concerned, confirmly it will be the example of covalent bond. अब अपना कोशिश करो कि माइक आओ. हाँ, सो आई एम रिपीटिंग. एक बॉन्ड है लेट्स से कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल किसी अच्छे बच्चे ने देखो मुझे लिख के भेजा भी है, अमन रंजन. हाँ, ये बच्चा तो लेक्चर अटेंड करता है ऑलरेडी. सो इट इज कोवलेंट बॉन्ड. सेकंड बॉन्ड शुड बी अगेन कंफर्मली कोवलेंट बॉन्ड, है ना. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल के बीच में अगेन द बॉन्ड शुड बी कोवलेंट बॉन्ड. The bond between Na and Cl will be confirmly ionic. This will be nothing but let's say ionic bond, the bond between highly electropositive metal and highly electronegative non-metal. So as per sodium chloride is concerned, sodium having +1 charge here and chlorine having -1 charge. Due to electronegativity difference, can we assume hydrogen acquired partial positive charge and chlorine acquired partial negative charge? Due to electronegativity difference, chlorine is more electronegative than hydrogen, and thus chlorine acquired partial negative charge. Due to this, HCl acquired positive pole and negative pole. Due to positive and negative pole, this compound, this bond is known as polar covalent bond. And in the case of H2, no charge will appear on corresponding hydrogen, so no pole acquired. This will be the example of non-polar covalent bond. So एक मेरे पास non-polar covalent bond है, एक let's say polar covalent bond है और एक ionic bond. किसी बच्चे को इसमें कुछ डिस्कस करना है कि पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि माही अच्छी बच्ची है, ये कुछ डाउट पूछ भी रही है. देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ ना, ये क्या होता था H2 या ये तो समझ में आ रहा है माही कि मेरा जो फर्स्ट वाले जो दो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे पक्का पक्का, है ना, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकते हैं. माही आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर. मतलब बेटा वो समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड्स हैं वो पक्का कोवलेंट बॉन्ड होंगे, है ना. हाँ सर. दोनों के दोनों ही नॉन मेटल है ना. अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की क्लोरीन? हाइड्रोजन. नहीं बेटा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो नॉन अपना हेलोजन है ना. हाँ हाँ राइट. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कैन वी से इट कैन पुश या इट हैज मोर टेंडेंसी टू पुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. यस सर. अगर वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन में ज्यादा खींच लेगा तो इट विल बी स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच मींस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, है ना. और हाइड्रोजन इन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना. हाँ सर. तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बन गए हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते थे कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना. हाँ सर. हाइड्रोजन जो H2 वाला मॉलिक्यूल है उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम ही है, सो नो चार्ज विल बी शेयर्ड. इज complete sharing of one electron each from hydrogen atom, and thus no charge will appear on the hydrogen, and it will be the example of non-polar covalent bond. उसमें कोई poles नहीं बने, है ना. हाँ. Now as per oxidation number is concerned, है ना, let's say as per oxidation number is concerned, in the case of non-polar bond, hydrogen and hydrogen both having 0 and 0 oxidation number. In the case of NaCl, oxidation number of sodium is +1 and oxidation number of chlorine is -1. Now in the case of HCl, if I assume this
polar bond as 100% ionic. सपोज इस बॉन्ड को भी मैं 100% आयनिक एज्यूम कर लूं, तो कैन यू सजेस्ट मी हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, +1 की -1? मतलब कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैं इस बॉन्ड को 100% आयोनिक एज्यूम कर लूं, मींस 100%, लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन. यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया मुझे. हाइड्रोजन विल एक्वायर्ड +1 चार्ज एंड क्लोरीन विल एक्वायर्ड -1 चार्ज, है ना. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाना चाहिए था. काव्या, बच्चे हम लोग समझेंगे कि वैलेंसीज नहीं है एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज समथिंग डिफरेंट. इससे हम लोग कुछ डिफरेंस समझेंगे भी कि वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है. बट ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोई नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कोई पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और कोई आयोनिक बॉन्ड है. और आयोनिक बॉन्ड में जो चार्ज अपीयर्ड होने वाला है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है. इन द केस ऑफ HCl, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था. और अगर उस बॉन्ड को मैं 100% आयनिक एज्यूम कर लूं तो +1 -1 चार्ज बन जाता है. हाइड्रोजन पे ऑब्वियसली कोई चार्ज अपीयर्ड है ही नहीं. बोथ हाइड्रोजन एटम आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड thus zero charge will be appeared on both hydrogen atom. नहीं लिखा भी है तुम लोगों ने साथ साथ में. So are you writing down some notes और सिर्फ सुन रहे हो तुम लोग? हाँ बेटा, साथ साथ में लिखना भी है किसी नोटबुक में, है ना. स्नेहा, आयोनिक बॉन्ड बेटा पहले से पोलर नॉन पोलर उसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट आयंस ही है ना. उसमें कोई डाइपोल नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल कोई है ही नहीं. दे आर परफेक्ट कैटायन एंड एनायन. तो आयोनिक बॉन्ड को हम लोग पोलर नॉन पोलर नहीं बोल सकते, है ना. लेट्स से आई कैन टेक few more examples. दुष्यंत, हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कैसे करेंगे हम लोग. जैसे देखो, ऋषित एक अच्छा बच्चा है, ये कुछ समझना चाहता है, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ. ऋषित देखो, ध्यान से देखो जो तुम एग्जांपल बोल रहे हो. लेट्स से सपोज इट इज CO2. You will see as per CO2 is concerned, oxygen forming 2 bonds and carbon is forming 4 bonds with oxygen atom. तो ऋषित तुम ही बताओ मुझे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऋषित, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई बच्चा बता सकता है, कोई और? यस ऋषित, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो यू कैन से ऑक्सीजन शुड एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन शुड एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज and carbon should acquire partial positive charge. So I can say carbon is forming 4 polar covalent bond with oxygen, and if all 4 bonds are assumed to be 100% ionic, then the charge appeared on the carbon should be +4. I'm repeating again. Carbon is forming 4 polar covalent bond with more electronegative oxygen, and if all 4 polar covalent bonds are assumed to be 100% ionic, then the charge appeared on the carbon should be +4. As per oxygen atom is concerned, it is forming 2 bonds with more electropositive carbon, and thus -2 should be the oxidation number, and this should be -2 as the oxidation number of this carbon. So in the case of CO2, every oxygen atom having -2 oxidation number, and middle carbon, central atom carbon should have +4 oxidation number. Rishit, are you getting this point? ना कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया था. ये हम लोग समझ लेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या इसका यूज होने वाला रहेगा. यस, जैसे हम लोग CO में भी समझ लेंगे अभी. बट CO2 आर यू गेटिंग कि भाई ऑक्सीजन में -2 है क्योंकि 2 बॉन्ड्स बना रहा था वो कार्बन के साथ, और कार्बन +4 है क्योंकि वो 4 बॉन्ड्स बना रहा था ऑक्सीजन के साथ. Okay, let me check another example here. Suppose if it is HCN, let's say
Suppose if it is hydrogen cyanide, here nitrogen is more electronegative than carbon. Hydrogen is more electronegative than carbon. Sorry, nitrogen is more electronegative than carbon, and nitrogen should acquire negative charge. हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो कोई बच्चा मुझे बता सकता था यार यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन. कोई भी बच्चा माइक अपना अनम्यूट करके बता सकता है. हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, and hydrogen is more electropositive than carbon, so it should acquire partial positive charge. और उस partial positive charge को अगर 100% ionic हम लोग assume कर ले तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा? सर 4 आएगा शायद. 4 सर 1 सर प्लस. हाँ यस, हाइड्रोजन शुड बी +1 है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया ना कार्बन के साथ. तो हाइड्रोजन शुड है +1 ऑक्सीडेशन नंबर. ऐसा ही नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. नाइट्रोजन is more electronegative than carbon and forming 3 bonds with more electropositive carbon, and thus nitrogen should be -3. Now as per central atom carbon is concerned, नाइट्रोजन की वजह से इस पे +3 बनता, एंड हाइड्रोजन की वजह से इस पे -1 बनता, एंड thus the resultant, you know, the resultant oxidation number of carbon should be +2. I'm repeating again, as per carbon is concerned, nitrogen के 3 bond से carbon should acquired +3, and from 1 bond with hydrogen it acquired -1. So the resultant oxidation number of the carbon is +2 here. I can take another example. Let's say it is hydrogen. This is chlorine and chlorine, suppose. Now as per chlorine is concerned, it is more electronegative than carbon, so it should have -1 and -1. Hydrogen is more electropositive than carbon, so it should have +1 and +1. Can anybody suggest what should be the oxidation number of this carbon? Yes, 0. Aman, you are right. So the oxidation number of carbon should be 0, है ना? +2 आ जाता दोनों क्लोरीन से मिला के, और -2 आ जाता दोनों हाइड्रोजन से मिला के, है ना? अच्छा, ऐसा ही एक बच्चा कुछ पूछना चाहता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? एज पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसर्न, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और कार्बन पे माइनस चार्ज है. विल सी इट इज समथिंग, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें, है ना, ऐसा समझेंगे भी. बट एज पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसर्न, कार्बन पे -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड 3 बॉन्ड्स. सो एज पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसर्न, it is -3 +1 -2, and as per carbon का oxidation number is concerned, it is +3 -1 which is +2. भाई अगर ये चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नहीं होता, है ना, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो ये +3 -3 हो जाना चाहिए. बट कार्बन पे रिजल्टेंट चार्ज अभी भी -1 है, and thus oxidation number of carbon should be just +2, and oxygen का oxidation number should be -2. कुछ एग्जाम्पल समझ रहे हो कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? सर हाँ बोलो. सर डाउट है सर, मुझे ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे कार्बन में +3 और -1 क्यों दिया, और ऑक्सीजन में +1 क्यों दिया, और -1 और +1 क्यों दिया करके. देखो मैं समझाता हूँ बेटा. ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है वो +1 है ना.
ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 है, ये Yes, sir. -3 तो कार्बन की वजह से चार्ज आ जाना चाहिए, और +1 है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, ऐसा कुछ बॉन्ड हम लोग समझेंगे, है ना। आई एम रिपीटिंग, कार्बन के 3 बॉन्ड्स की वजह से इस पे -3 हो जाना चाहिए, बट लेट्स से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है कार्बन को, है ना, जिसकी वजह से उसमें चार्ज भी +1 है। सो -3 कार्बन की वजह से, ऑलरेडी इस पे +1 चार्ज है, तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है लेट्स से इस पे -2, है ना। नेट ऑक्सीडेशन नंबर इस पे आ जाता है लेट्स से -2, कार्बन की वजह से आया -3, और एक प्लस चार्ज इस पे ऑलरेडी है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ा Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay, before we move further to calculate oxidation number, you should have just idea of which element should be more electronegative और कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, something like this, है ना। जैसा to understand this, हम लोग कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिख सकते हैं, कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। Can you suggest me in nature which element is found to be most electronegative? बेटा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? Fe. Yes, Dushyant, it is fluorine. You know, fluorine is found to be most electronegative element in the nature. And after fluorine, any idea? अमन, नहीं बेटा तुमने गलत बताया है, कुछ और अच्छा बच्चा बताओ। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड आफ्टर फ्लोरीन इट इज गुड। दुष्यंत ने अच्छे से बताया। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आफ्टर ऑक्सीजन यू कैन से नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative than many element including carbon. Carbon is more electronegative than many element including hydrogen. Hydrogen is more electronegative than, let's say, sodium. Sodium is more electronegative than, let's say, you can say cesium and so on, है ना। So you can say cesium and francium are one of the least electronegative या most electropositive element. In general, in periodic table, across the period electronegativity increases and down the group electronegativity decreases. ये थोड़ा थोड़ा आइडिया शायद तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल है। So have you note down this? फ्लोरीन Yes. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दीज आर फर्स्ट 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एंड दे आर समवेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. Carbon is more electronegative than hydrogen, and so on. Now, before we see more examples of oxidation number, we can just try to find out some rules to find out complex oxidation number. So let's say rules to find out complex oxidation number. And here you can say rule 1. Rule 1 is oxidation number of hydrogen can be either -1, 0 or +1 only. ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का हो सकता है वो या तो -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या से +1 हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, once hydrogen combined with hydrogen itself,
hydrogen can combine with more electronegative element, and hydrogen can combine with more electropositive element. फर्स्ट वाले केस में हाइड्रोजन हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड वाले केस में हाइड्रोजन हैविंग +1 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड थर्ड वाले केस में हाइड्रोजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर. So rule 1 is oxidation number of hydrogen can be either -1, 0 or +1 only. Are you getting this point? Yes, sir. इसमें किसी को कुछ डिस्कस करना है? Same. Let's say we have rule 2. Rule 2 is, let's say, oxidation number. Oxidation number of alkali metals. ये अल्कली मेटल का मीनिंग क्या होता है? कौन से मेटल होते हैं? द अल्कली मेटल्स. सर सर गैलियम, सोडियम और गैलियम तो नहीं होता है. तो दुष्यंत ने मुझे सही बताया है. बेटा पीरियड नहीं, लक्ष्मीदार ग्रुप है ना. गुड. अमन अच्छा से बताया है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. यस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. It is rubidium, it is cesium, francium. So you can say basically group 1K metals, है ना. So oxidation number of alkali metal can be either 0 or +1 only. Oxidation number of alkali metal can be either 0 or +1 only. So for example, somewhere if it is written as sodium in free state, sodium in free state, oxidation number will be 0. And when sodium present in combined state, for example Na2O, sodium oxide, oxidation number of sodium is found to be +1. So I'm repeating again, oxidation number of alkali metal can be either 0 or +1 only. इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है अल्कली मेटल का, है ना. Similarly, let's say as per rule 3 is concerned, it is oxidation number of alkaline earth metal. Oxidation number of alkaline earth metal. और ये alkaline earth metal क्या होते हैं? मैं ये भी बताओ जरा अच्छे से. Alkaline बेरिलियम, मैग्नीशियम. Yes, है ना. You can say group 2K basically, ना. तो second group के जो element हैं, they known as alkaline earth metal. So oxidation number of alkaline earth metal can be either 0 or +2 only. Can be either 0 or +2 only. For example, suppose if it is somewhere written as calcium, or if it is written as suppose calcium carbonate. So in free state, calcium का oxidation number is 0, and in combined state, calcium is always +2. So oxidation number of alkaline earth metal can be either 0 or +2 only.
same you can see rule 4. बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोगों को थर्ड रूल? यस सर। हाँ, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? भूमिका, दुष्यंत तो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। हर्षित, तुम, जोयल, तुमने अभी तक कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया भाई। सेतु, मतलब तुमने भी कुछ अभी कोई आंसर नहीं दिया मुझे, कुछ पार्टिसिपेट करना है ना? सो रूल 4, ऑक्सीडेशन नंबर of, let's say, fluorine. Oxidation number of fluorine can be either 0 or -1 only. फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या तो वो 0 हो सकता था या -1 हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if it is somewhere written as F2 and somewhere if it is written as, let's say, NaF. So oxidation number of fluorine in F2 will be 0 and NaF should be -1. अच्छा, do you think ये जो रूल 4 है, it is equally applicable for all other halogens? But NaF will be sodium fluoride, है ना? NaF can be written as sodium fluoride. But I am repeating again, do you think ये जो rule 4 है, it is equally applicable for all other halogens also? जैसा rule 4 क्लोरीन के लिए भी एप्लीकेबल है? यस सर। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यस, किसी बच्चे का नो है इसमें? ये जो रूल 4 है ना, थोड़ा ध्यान से और समझना. रूल 4 is applicable only for fluorine, since we'll see few compounds of chlorine can be like this also, ClF3, या क्लोरीन के देखो कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं HClO4. तो इस वाले केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इस वाले केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है. सो दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लोरीन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +7 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, बट फ्लोरीन कैन बी आइदर 0 और -1 ओनली. तो थोड़ा याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट सिर्फ फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है ना? अदर हैलोजेंस कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स आल्सो. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट? आपने जो रेड में लिखा, आपने बोला ना कि दिस इज ओनली, आपने प्रूफ किया ना कि केवल दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन, वो मुझे नहीं समझ आया बेटा. मैं बता रहा था कि क्लोरीन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनाता है जैसा ClF3 है ना? These type of compounds are known as interhalogen compounds. ये हम लोग डिटेल में समझेंगे भी, है ना? बट जैसे ClF3 में क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और ये जो एसिड है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, यहाँ क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ फ्लोरीन के लिए ही एप्लीकेबल है ना? कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन कैन बी आइदर 0 और -1 ओनली. ओके सर, ठीक है. हाँ, थैंक यू. as per rule 5 is concerned, you can say oxidation number of oxygen can be either -2, -1, -half, -0, +1,
or you can say it is +2 only. So oxidation number of oxygen -2 हो सकता था. It can be -1, it can be -half, it can be 0, it can be +1, it can be +2 only. अच्छा, 1 by 1 हम लोग समझ लेंगे कि ये -2 कब होने वाला है, -1 कब होने वाला है, -half कब होने वाला है, 0, +1 या +2 कब कब होने वाला है. सो 1 by 1 हम लोग डिफरेंट कॉलम्स में समझ लेंगे ये देखो, है ना. So oxidation number of oxygen can be -2. It can be -1. It can be -half. It can be 0, and it can be +1, and it can be +2. अच्छा, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, it is represented as O2-, and it is also known as oxide ion. जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, it may be represented as O2-2-, and this ion is known as peroxide ion. जब ऑक्सीजन -1 है, it may be written as O2-1, and यहाँ it is known as सुपर ऑक्साइड आयन. एक ऑक्साइड आयन है, एक पैरोक्साइड आयन है, और एक सुपर ऑक्साइड आयन है. Now if you see few examples of oxide. Oxide means this may be, let's say, CO2. This may be, let's say, SO3. This may be, let's say, N2O5. This may be, let's say, P4O6. तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, इंक्लूडिंग लेट्स से Na2O, जितने भी ऑक्साइड हैं, सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी -2. अच्छा, इन ऑक्साइड से जो ऑक्सी एसिड्स बनते, फॉर एग्जांपल दिस एसिड में बी H2SO4, या जो बेस बनता लेट्स से NaOH, या ये जो एसिड बनता HNO3, इन सब एसिड में या बेस में ऑक्सीजन हैविंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर. इवन जब ये एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते, तो वहां भी इन जनरल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सॉल्ट इज फाउंड टू बी -2. So here you can understand the most common oxidation number of oxygen is -2. If oxidation number is -1, it is known as peroxide. For example, this may be H2O2. The example may be, let's say, Na2O2. The example may be, let's say, Na2O2. और एग्जाम्पल में भी लेट्स से BaO2. यहाँ सब जगह ऑक्सीजन हैविंग -1, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है ना. तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स आर नोन एज पैरोक्साइड. जैसा फर्स्ट वाला कंपाउंड नोन एज हाइड्रोजन पैरोक्साइड, दूसरा वाला कंपाउंड नोन एज सोडियम पैरोक्साइड, और तीसरा वाला कंपाउंड नोन एज बेरियम पैरोक्साइड. This is KO2, in which oxygen having -half oxidation number, in which oxygen having -half oxidation number, and it is known as superoxide, superoxide ion. Oxygen can have 0 oxidation number if it is, let's say, O2, if it is, let's say, O3, or if we have molecule of this type HOF, in which fluorine का oxidation number is -1 by rule, hydrogen oxidation number is +1 by rule,
तो यहां से ऑक्सीजन पे आ जाता -1 और यहां से ऑक्सीजन पे आ जाता लेट्स से +1 and thus the net charge of the oxygen will be 0. I'm repeating again. The most common oxidation number of oxygen is -2. और जब भी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में है इट इज नोन एज ऑक्साइड. जब भी ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है इट इज नोन एज पैरोक्साइड. ऑक्सीजन जब भी -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर में है दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड. अभी तक जो लिखा है उसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो. सर एक्सक्यूज मी सर, H2O2 आपने एग्जांपल दिया ना, उसमें -1 कैसा उसका आई मीन चार उसका -1 कैसा ऑक्सीडेशन नंबर? वहां जो दोनों हाइड्रोजन है उनका +1 है ना. हाइड्रोजन के लिए तो रूल पढ़ा हम लोगों ने कि हाइड्रोजन 0 हो सकता है या +1 हो सकता है या -1. सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन तो डू यू थिंक हाइड्रोजन पे +1 ही होगा बस? यस सर. तो दोनों हाइड्रोजन मिला के चार्ज कितना हो गया? +2. यस सर. तो दोनों ऑक्सीजन मिला के चार्ज क्या होना चाहिए? -2. यस सर. तो एवरी ऑक्सीजन शुड हैव -1 है ना. यस सर. सो -1 जब कभी भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज नोन एज पैरोक्साइड आयन. ओके सर. ठीक है. तो कोई अच्छा बच्चा है अरविंद्र, कोई और बच्चा भी पूछ सकता है ऐसा कुछ? आर्यन तुम्हें कुछ डाउट है? आर्यन सिंह, ये बच्चा एकदम चुपचाप है ना. सर आप CO2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? सर सुपर ऑक्साइड आयन में देखो, हाँ देखो KO2 के लिए भी लोग समझ सकते हैं. पोटेशियम इज अल्कली मेटल एंड बाय रूल पोटेशियम इन कंबाइंड स्टेट शुड बी ऑलवेज +1. by rule potassium should be always +1. it is alkali metal and thus दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे मिला के जो चार्ज होना चाहिए था it should be -1 and thus per oxygen it should be -1/2. getting? यस सर. Sir, I did not this. कौन सा डाउट? Sir, sir, the superoxide ion example. देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना चाहिए ना. पोटेशियम अल्कली मेटल है. Yes, sir. तो दोनों ऑक्सीजन मिला के चार्ज कितना हो जाएगा? -1. Okay. तो पर ऑक्सीजन इट शुड बी -1/2. Okay, sir. गुड. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई. कैन यू सजेस्ट मी विद विच एलिमेंट? बेटा हम लोग और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अनमोल सुपर ऑक्साइड्स के. बट द मीनिंग ऑफ सुपर ऑक्साइड इज, है ना, द मीनिंग ऑफ सुपर ऑक्साइड इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मीन्स पोटेशियम इज अल्कली मेटल एंड ऑक्सीजन हैविंग -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर. दोनों ऑक्सीजन मिला के चार्ज शुड बी -1. only with fluorine, है ना, only with fluorine oxygen का oxidation number can be positive since only fluorine is more electronegative than oxygen. So oxidation number of this oxygen should be +1 and oxidation number of this oxygen should be +2. Are you getting my point? तो अगर तुम्हें सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेने वाले हो यार तुम लोग?
यस है ना, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 ले सकते हो, है ना, हमेशा। और अगर पहले से पता है या फाइंड आउट कर सकते हैं देन इट कैन बी पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते थे तुम लोग यहाँ कि द जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सो यू कैन से जनरल ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is -2, you know, it is the most common oxidation number of oxygen as -2. अच्छा, have you note down this oxygen के लिए oxidation numbers? स्नेहा तुमने लिखा है बच्चे? स्नेहा, are you getting my voice? Good, है ना? So let's move to the next rule. So till now हम लोगों ने कुछ 5 रूल लिखे हैं, 4 रूल्स लिखे हैं अभी तक, 5. Okay. So the next is, that's the 6th one. You can say maximum. जो भी अभी तक 4 रूल्स लिखे थे, एक हाइड्रोजन के लिए, एक अल्कली, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक हम लोगों ने फ्लोरीन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, 6th है पक्का, है ना. So you can say maximum oxidation number of any element, maximum oxidation number of any element possible equal to plus of its valence electron. So maximum oxidation number of any element possible equal to plus of its valence electron. बेटा बोर्ड पे थोड़ा सा कम हाथ लगाने की कोशिश करना तुम लोग, है ना. So maximum oxidation number of any element possible is plus of its valence electron, and similarly you can say minimum oxidation number should be equal to minus of 8 minus valence electron. So the minimum oxidation number equal to minus of 8 minus valence electron. For example, now suppose if we have nitrogen electronic configuration may be written as 2,5. So can you suggest me what should be the minimum oxidation number? What should be the minimum oxidation number of nitrogen here? बच्चे नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3. Yes, nitrogen should have -3 as a oxidation number minimum. और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का? -3 से लेके कहां तक वेरी कर सकता है ये? +5 है ना? 5. सो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 हो सकता था और मैक्सिमम +5 हो सकता था, है ना. Similarly, if you see sulfur outermost electronic configuration is 2,8,6. So its minimum oxidation number can be -2 and its maximum oxidation number can be +6. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Good. अभी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो यस और नो में रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना. बाकी सब बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, है ना.
बेटा ये लिखा है तुम लोगों ने सब बच्चों ने? Yes, sir. ठीक है, so let's say seventh one, you can say, let's say algebraic sum of oxidation number of all atoms of given molecule, algebraic sum of oxidation number of all atoms of given molecule is of given molecule और ion भी हम लोग लिख सकते थे ना, given molecule or ion is, you can say, net resultant charge. Net resultant charge appeared for example, suppose if it is Cr2O7 2 minus, किसी बच्चे को इस एनायन का नाम पता है कि नाम क्या होगा? Cr2O7 2 minus, Dichromate. वेरी गुड, डाइक्रोमेट आयन। क्या कलर होता है डाइक्रोमेट्स का? किसी बच्चे को कुछ आइडिया है? Orange. वेरी गुड, है ना? Orange. यस यस, है ना, ऑरेंज कलर होता है। और ये लेट्स से डाइक्रोमेट आयन। सपोज यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता था? -2, है ना? दैट इज द जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। नाउ सपोज अगर लेट्स से मुझे यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था तो मैं उसको x एज्यूम कर लूं, सपोज, है ना? द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक सम इज 2 क्रोमियम है और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर x है, 7 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। So it is the algebraic sum. And what is the net resultant charge on dichromate ion? -2. So it should be equal to net resultant charge as -2. From here, x comes out to be +6. So with the help of this algebraic sum, we can find out unknown oxidation number. जैसे यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होने वाला है। Similarly, suppose if we have another compound as KMnO4, अच्छा इस कंपाउंड का नाम क्या होता है KMnO4 का? पोटेशियम परमैग्नेट। वेरी गुड। और इसका कलर क्या होता है? पिंक। Purple. पर्पल Yes, पर्पल बोल सकते हैं। So it is, yes, it is a dark pink या पर्पल, you can say, ना? So पर्पल कलर है ना? पर्पल कलर विद ग्रीनिश लश्चर होता है उसमें, anyway, है ना? अच्छा यहाँ पोटेशियम इज अल्कली मेटल, potassium is alkali metal and by rule its oxidation number should be +1 in combined state. Oxygen का oxidation number you can take as -2. So as per manganese is concerned, suppose its oxidation number is X. So can you find out the value of X from here? Yes, -1 -1 नहीं भाई, ध्यान से देखो, X का वैल्यू, यस अनमोल ने सही बताया है, अमन सही बता रहा है। तो जैसे एल्जेब्रिक सम लिखते समय पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 और मेरे पास एक ही पोटेशियम है। मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर इज लेट्स से +7, सॉरी इट इज लेट्स से +6 एंड 4 ऑक्सीजन है और हर एक के लिए -2 है। should be equal to its resultant charge. इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट चार्ज कितना है?
ये Zero. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट चार्ज 0 है. From here X comes out to be +7. So here manganese का oxidation number is found to be +7. So are you getting how we can have +7 oxidation number and +5 oxidation number? Sorry, +6 for chromium, है ना? सर हाँ बोलो. सर इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे 0 है? रिजल्टेंट फोर्स नहीं बेटा, रिजल्टेंट चार्ज है ना. सॉरी रिजल्टेंट चार्ज इसलिए 0 है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना. KMnO4 पे कोई चार्ज है क्या? नहीं. डाइक्रोमेट आयन पे तो -2 चार्ज. ये Okay, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज 0 पुट किया, उसका रिजल्टेंट है ना. ओके सर. सर फिर हमें ये डाइक्रोमेट में ये -2 करके हमें कैसे पता चला फुल चार्ज? डाइक्रोमेट पे -2 कैसे होगा, वो कैसे पता चला? ये देखो धीरे धीरे और पता भी चल जाएगा. बट तुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आता है क्या बच्चे? हाँ आता. क्या होता बताओ मुझे. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. वेरी गुड. अगर मेरे पास फार्मूला बच्चे, अगर K2Cr2O7 है, इसका K2 पोटेशियम इज अल्कली मेटल, उस पर +1 चार्ज होगा. यस सर. सो सब मिला के कैटायन पे चार्ज कितना हो गया? +2. तो डू यू थिंक ये जो एनायन है उस पे भी चार्ज -2 होना चाहिए टू हैव बैलेंस न्यूट्रल K2Cr2O7, है ना? ओके सर. ठीक. अभी सर क्वेश्चंस हम लोग करना स्टार्ट. हाँ बोलो. सर बट रूल 6 था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी द प्लस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वेरी गुड. वो Mn का 7 कैसे हुआ? क्योंकि बेटा मैग्नीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं. जो मैग्नीज है ना बेटा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. हम लोग क्लास 11th में देखेंगे भी. कुछ ऐसा कभी पढ़ा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का 3d5 4s2 ऐसा कुछ होता है? किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा है ऐसा कभी, कुछ ऐसा आइडिया? नहीं, हम लोग क्लास 11th में ऐसा पढ़ भी लेंगे कि मैग्नीज में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रोमियम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. पढ़ेंगे ऐसा, है ना? यस, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. कुछ बच्चों ने ऐसा नाम सुना हुआ है शायद, है ना? सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर आपने एक्सप्लेन किया ना वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का. मुझे वो प्लस K2 है ना, उसका +2 है, वहां तक मुझे आ गया. उसके बाद मुझे कंफ्यूज हो रहा है. बेटा क्यों कंफ्यूज हो रहा है? मतलब अभी के लिए बस तू ये समझ कि लेट्स से डाइक्रोमेट आयन है ना, लेट्स से डाइक्रोमेट आयन पे जो चार्ज है लेट्स से वो -2 होता है. जैसे सल्फेट आयन पे -2 है, लेट्स से अभी डाइक्रोमेट आयन पे भी -2 है. अभी के लिए सपोज वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? आर यू गेटिंग? कि लेट्स से अभी के लिए वो ऑक्सीडेशन, अभी के लिए वो -2 लेट्स से गिवन है ना? हाँ ठीक. ओके. अच्छा, जो भी हम लोग ने आज पढ़ा उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, है ना? आर यू रेडी? जो भी अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने उसके बेस पे, है ना? सो फर्स्ट क्वेश्चन, और यू कैन से इट इज द क्वेश्चन ऑफ लेवल 1, आसान वाला क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट, let's say oxidation number of each nitrogen in following.
you have to find out oxidation number of each nitrogen atom in following compound. एक कंपाउंड है, लेट्स से सपोज मेरे पास यहाँ अमोनियम आयन, एक कंपाउंड है लेट्स से N2H4, एक कंपाउंड है NH2OH, एक कंपाउंड है लेट्स से N2, इसमें एक कंपाउंड है लेट्स से N2O, एक कंपाउंड है इसमें NO, another set of compound may be NO2 minus, another compound is NO2, and next compound is let's say suppose NaNO3. यहाँ हर एक कंपाउंड में we have nitrogen atom and you have to find out oxidation number of nitrogen in following compounds. आराम से तुम लोग ट्राई करो, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। हम बेटा आराम से एक बार सबके लिए कैलकुलेट कर लो, फिर मुझे इकट्ठा ही आंसर बताना, है ना। कुछ कुछ बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं। अमोल तुम्हारा बेटा फर्स्ट वाला गलत है। दुष्यंत मोर ऑफ लेस तुमने सही लिखा है, यस। अनमोल अब तुम्हारा आंसर सही हो गया है ना। So if you see the answer, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, यहाँ ये -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ ये +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ +5 है। So nitrogen can show oxidation number from -3 to +5. Nitrogen can show oxidation number from -3 to +5. इसमें एक दो एग्जाम्पल में दोबारा से समझा सकता हूं डिटेल में। सो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा एग्जाम्पल मुझे फिर से मैं तुम लोग को बता सकता हूं। उसमें टेंशन नहीं लेना है ना, तुम लोग पूछ सकते हो। सर थर्ड एग्जांपल देखो थर्ड में बताता हूं। इन द केस ऑफ NH2OH, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, एंड thus हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट शुड बी +1। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, तो जिसके साथ भी जुड़ा होगा आइदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन शुड है +1। तो तीनों हाइड्रोजन मिला के हो गया था +3। नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जिससे भी जुड़ा होता इट शुड बी -2, एंड दस नेट चार्ज या नाइट्रोजन के लिए एज्यूम कर लो कि लेट्स से x है,
इस मॉलिक्यूल पे जो मेरे पास नेट चार्ज है इट इज 0, है ना। यहां मेरे पास जो नेट चार्ज है इट इज 0 एंड दस x का वैल्यू यहां आ जाता मेरे पास +1। सॉरी, कितना आ जाता मेरे पास? -1। सो थर्ड वाले केस में नाइट्रोजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर। जिस बच्चे का थर्ड वाला डाउट था उसको क्लियर हुआ है कुछ? यस सर। तीनों हाइड्रोजन मिला के +3, ऑक्सीजन इज -2, नाइट्रोजन x हम लोग ने एज्यूम कर लिया है ना। आंसर लास्ट वन भी देख लेते हैं। देखो, एज पर अल्कली मेटल इज कंसर्न सोडियम, इस पे कितना चार्ज होना चाहिए था? +1। तीनों के तीनों ऑक्सीजन मिला के इट शुड बी -2 ईच। नाइट्रोजन इज सपोज x एंड हियर नेट चार्ज शुड बी 0। और यहां से हम लोग सॉल्व करते तो x का वैल्यू देखो ऐसा +5 आ जाएगा। ये लास्ट एग्जांपल। सर लास्ट का जरा रिपीट कर सकते हैं, लास्ट एग्जांपल। लास्ट में सोडियम इज अल्कली मेटल, और अगर वो अल्कली मेटल है तो +1 रहना चाहिए। फिर ये तो हमने रूल पढ़ा ना कि अल्कली मेटल आइदर 0 होगा फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में इट विल बी ऑलवेज +1। ऑक्सीजन लेट्स से -2 है और 3 ऑक्सीजन है तो मिला के -6 हो जाता। सो +1 -6, नाइट्रोजन लेट्स से +x एंड शुड बी इक्वल टू 0। किसी और बच्चों को किसी और एग्जाम्पल में डाउट है कुछ? हाउ टू डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अमन बेटा, जब तक तेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, जब तक तू -2 एज्यूम कर सकता है ऑक्सीजन। जब टेंशन बढ़ेगी तो हम लोग समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का और कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। अभी तो सबके लिए तू -2 ले सकता है। सर बोलो। सर जो थर्ड एग्जांपल है उसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, H2 के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए आपने -2 डाला है। 3 + 3 बेटा या तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, किसी के साथ भी जुड़ा हो। दोनों केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। ओके तो दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 आ जाएगा। -1 हर एक से या किसी से एक से -2 सब मिला के -2 होगा वो, है ना। हाँ ओके सर, पर अभी ये जो ऑक्सीजन है वो जो हम जब देखते तो हम ये राइट साइड में जो 1H है तो उसके साथ भी तो जुड़ा हुआ है। हाँ तो भाई जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का, अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, है ना, जैसे देखो अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो ऐसा है टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका। H है, यहाँ N है एंड H है, एंड यहाँ O है एंड H है। ये स्ट्रक्चर है थर्ड का, NH2OH। तो नाइट ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से, जहां से उस पर -1 आ जाता, और एक बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन से जहां से उस पर -1 आ जाता, एंड द नेट चार्ज ऑन ऑक्सीजन शुड बी -2। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कोई बच्चा मुझसे ये वाला डाउट भी पूछ रहा है, NO2-। बेटा NO2- में नाइट्रोजन के लिए X एज्यूम कर लो यार, ऑक्सीजन विल बी -2। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना होता तो ये आ जाता X + 2 of -2 and the net resultant charge is found to be -1, है ना, and thus X का वैल्यू will be +3 है। मुझे किसी और बच्चों को किसी और ऑप्शन में कुछ डाउट है ऐसा? नहीं शर्माओ नहीं बेटा, पूछ लो, है ना। ओके, नाउ इट्स ऑल क्लियर। अच्छा फोर्थ वन, बेटा फोर्थ में तो बहुत आसान था, इसने यहाँ N2 है बेटा, तो नाइट्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन ओनली, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड दस ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0।
स्नेहा आर यू गेटिंग? बेटा वहां तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही कंबाइन है ना? हाँ. यस, अनमोल ने एकदम सही बात बोला कि वो अपना एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंट ही है जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है, तो वो जीरो स्टेट होना चाहिए था, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए था. ओके, लेट्स मूव टू द लेवल 2. लेवल 2 is let's say find out oxidation number of every carbon in following. You have to find out oxidation number of every carbon in following compounds. Let's say ये जो compounds हैं, this will be CH4, it is CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, carbonate ion, formate ion, oxalate ion, that's a CH3, 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 C triple bond CH, CH3, C triple bond N, that's a CH3, CO, CH3, CH3, COOH, and let's say CH3CHO. So you have to find out oxidation number of each and every carbon atom in following compounds. सर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मिलेगा?
दुष्यंत अभी क्लियर है तुम्हें? यहाँ HCO3 माइनस होना चाहिए, है ना? ये अभी तक कुछ डाउट्स है तुम लोगों को जो अभी लिखा हुआ है यहाँ? +4 +3 and then both carbon is -3 -3. No sir. Okay, next वाला example if you see CH3 C triple bond CH, the oxidation number of this carbon should be -3 as it is forming 3 bonds with more electropositive hydrogen. इसने बड़े ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई as per this carbon is concerned CH3 it should be -3 as forming 3 bonds with more electropositive hydrogen. Oxidation number of this carbon should be 0. Oxidation number of this carbon should be 0 as it combined with carbon as a carbon only, and oxidation number of this carbon should be -1 since it is forming only one bond with more electropositive hydrogen. कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। कार्बन एंड कार्बन आर फाउंड टू बी इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड रो में किसी को कुछ और डाउट है? So sir, in the last example sir, we can, so sir, though each carbon का sir average लेंगे sir चार्ज का, तो sir -4/3 आना चाहिए। Yes, अगर हम लोग एवरेज लेंगे तो -4/3 आएगा, बट अगर मेरे पास इंडिविजुअल स्ट्रक्चर अगर गिवन ही है ना, सपोज क्वेश्चन में अगर मुझे स्ट्रक्चर ही गिवन है तो मैं इंडिविजुअल कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने जो एग्जांपल दिया था CH3 का, तो उसमें H का आपने +1 लिखा है यहाँ पे, मगर ये -3 कैसे हुआ? 3 + 3 होना चाहिए ना, कैसे -3 हुआ? 3 हाइड्रोजन है, हर एक से -1 -1 -1 आ गया कार्बन के ऊपर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ओके, हाँ यहाँ पे आपने +1 लिखा है तो इसलिए कंफ्यूज हुआ। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, if you see CH3CN, so do you think the oxidation number of this carbon should be -3 as this carbon is forming 3 bonds with more electropositive hydrogen? This carbon is forming 3 bonds with more electropositive hydrogen. As per this carbon is concerned, its oxidation number should be +3 as it is forming 3 bonds with more electronegative nitrogen. As it is forming 3 bonds with more electronegative nitrogen. More electronegative के साथ 3 bonds है तो वहां से +3 आ जाता। CH3 is forming 3 bonds with more electropositive hydrogen तो -3 आ जाता। अच्छा, जल्दी से कौन बच्चा बताएगा मुझे? थर्ड लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये CH3CO CH3, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। स्नेहा बेटा तुमने बताया तो सही है, शायद तूने कुछ 0 या इक्वल टू या -3 + 2 -3। यस यस, अनमोल और बाकी बच्चे जो बता रहा है उसने भी सही बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन शुड बी -3, दिस कार्बन शुड बी +2 एंड दिस कार्बन शुड बी -3। यस है ना, सिंस
दो कार्बन है जो CH3 वाले हैं, they are forming 3 bonds with more electropositive hydrogen. Middle वाला कार्बन is forming 2 bond with more electronegative oxygen. Okay, second last example का आंसर -3 plus 2 -1. ध्यान से देखो, it should be -3 नहीं बेटा, -3 and +3. +3 कैसे आएगा? Carbon is forming 3 bonds. Carbon is forming 3 bonds with more electronegative oxygen. Carbon is forming 3 bonds with more electropositive oxygen. एक बार डबल बॉन्ड बनाया है और एक बार सिंगल बॉन्ड बनाया है. So 3 bonds with more electronegative means +3 oxidation number आ जाएगा उसका. ऐसा ही. Can you suggest me for last example? CH3CHO. -3 plus 3. ये तो -3 आएगा. नेक्स्ट वाला कार्बन +3 +3 नहीं आएगा. कोई अच्छा बताओ. +2 प्लस क्या आना चाहिए? प्लस +1. yes, it should be +1 है ना. अच्छा, +1 कैसे आ सकता? थोड़ा और ध्यान से तुम लोग देख सकते हो. CH3CHO. So as per oxygen is concerned, it should be -2. Hydrogen should be +1. So from hydrogen, it acquired -1, and from oxygen, it acquired +2. And thus the net charge on the carbon, है ना, the net charge on this carbon should be +1. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो वहां से +2 आना चाहिए, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वहां से -1 आना चाहिए. मुझे किसी बच्चे को इन एग्जाम्पल्स में कुछ डाउट है? हम लोग फिर लेवल 3 पे जाएंगे, है ना. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर क्या आप मुझे CH2Cl2 एक बार समझा सकते हैं? CH2Cl2. जो CH2Cl2 है वो कुछ ऐसा, ये तो एग्जाम्पल देखा भी था यार, HHCl and Cl. सो यहाँ क्लोरीन -1, ये क्लोरीन -1, ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, and thus the net charge on the oxygen should be 0. Okay. दोनों हाइड्रोजन से -2 आता और दोनों क्लोरीन से +2 आएगा, सो नेट चार्ज कार्बन पे 0 हो जाएगा. ओके सर. सर फिर अभी मतलब क्लोरीन को एक स्टैंडर्ड चार्ज नहीं है ना, बिकॉज इसके पहले आपने एक एग्जांपल लिया था तो उसमें क्लोरीन को आया था कोको का जो चार्ज था वो था 7, एक में 3 था. बट थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करो कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से लेके +7 तक वेरी होगा, है ना. यस सर. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेके +7 तक वेरी होगा, बट जब भी माइनस होगा तो इट विल बी -1 ओनली. नाउ सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नेगेटिव में तो -1 ही हो सकता है बस, है ना. ओके सर. इफ सपोज देयर विल बी अ कंपाउंड फॉर्म जिसमें अभी क्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अभी मतलब अभी जैसे यहाँ पे क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे अभी कार्बन को रिप्लेस करके ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो कि क्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
तो देखो प्लस देखो ये ड्रॉ किया मैंने ना, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताओ यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 and +7। क्लोरीन इज फॉर्मिंग 7 बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ओके सर। बेटा डबल बॉन्ड बना रहा है, 3 डबल बॉन्ड है और 1 सिंगल बॉन्ड है ना, तो सब मिलाकर 7 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि क्लोरीन किसके साथ कंबाइन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। ओके सर, गॉट इट। सो लेट्स मूव फर्दर। थैंक यू सर। So level 3 is, let's say, find out oxidation number, है ना, find out oxidation number of, you can say, underlined element, है ना, जिसके नीचे मैंने लाइन खींचा है। So find out oxidation number of underlined element in given compounds. That's the first one. It is K2Cr2O7 and chromium is underlined. Second, let's say it is KO2, potassium is underlined. It is BaO2, barium is underlined. It is PbO2, lead is underlined. It is CrO2Cl2, chromium. It is MnO4, 2 minus manganese. It is CrNH3, 6 and Cl3. Chromium is underlined. Next one is CrO5. Chromium is underlined. Next one CaOCl2. Chlorine is underlined. So you have to find out oxidation number of underlined element in given compounds.
Okay, let me discuss one by one. As per chromium is concerned, its oxidation number should be +6 here. Potassium is alkali metal and barium is alkaline earth metal. Lead is in the same group as carbon. तो जैसे lead dioxide हो सकता था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता था, ये lead डाइऑक्साइड है, so it is +4. यहाँ क्रोमियम +6 है और यहाँ मैग्नीज +6 है. ये पहले मुझे ये बताओ कि इन फर्स्ट 6 में कुछ डिस्कस करना है बेटा. फर्स्ट 6 में कुछ डिस्कस करना है, पहले ये बताओ ना बेटा. किसी सर सेकंड का 4 होना चाहिए ना, के का. सेकंड का 4 नहीं हो सकता है. सेकंड इज अल्कली मेटल पोटेशियम एंड बाय रूल इट शुड बी +1. ऑक्सीजन वहां -½ होगा, है ना, वो सुपर ऑक्साइड है. यस अनमोल. बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 6 में किसी को डाउट है? थर्ड, बेटा थर्ड में भी इट इज बेरियम. बेरियम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल and alkaline earth metal has fixed oxidation number as +2. Barium is alkaline earth metal and it has fixed oxidation number, है ना. So I hope first 6 में तुम लोगों ने समझा है, उसमें कोई डाउट नहीं है. First 6. सेवेंथ में, सेवेंथ देखो कुछ ऐसा आइडिया समझ सकते हो. एज ए NH3 एज ए मॉलिक्यूल इज कंसर्न, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3 या इस पर कोई चार्ज होता है? NH3 पे अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 6 के 6 अमोनिया मिला के भी न्यूट्रल ही होगा ये सब. एवरी क्लोरीन इज -1, so 3 क्लोरीन मिला के हो गया -3 and thus the oxidation number of chromium should be +3, है ना. the oxidation number of chromium should be +3 here. सर नहीं समझा. 7 बेटा NH3 सब मिला के न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है. अगर NH3 पे कोई चार्ज नहीं है तो 6 के 6 NH3 का भी कोई चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. बाकी बचा क्लोराइड आयन. एवरी क्लोराइड आयन इज -1. एवरी क्लोराइड आयन इज -1, तो तीनों के तीनों क्लोरीन मिला के शुड बी -3 एंड thus chromium should have +3. overall it is neutral molecule. यस सर. बेटा क्लोरीन मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल.
कुछ पढ़ेगा कि these structures are known as coordination compound, कि भाई जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो मल्टीप्लाई नहीं है ना, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड में नहीं है बेटा, वो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, can you repeat this once again because I was disconnected because of some technical issues. हाँ, अरे रविंद्र कोई इशू ना बेटा, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा तुम्हारा, टेंशन ना लो, है ना। बट एनीवे NH3 यहाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था। हर एक क्लोरीन पे -1 है, तीनों क्लोरीन मिला के -3 हो जाता, एंड द क्रोमियम शुड हैव +3। एनीवे इट इज CrO5। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये थोड़ा सा, तो किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 नहीं हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का +8 हो सकता है मैक्सिमम, है ना। अच्छा, CrO5 के लिए तुम लोग को याद भी रखना है, क्या याद रखना है कि CrO5 का एज पर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, ये याद रखने की कोशिश भी करोगे। CrO5 का स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज आल्सो नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या बटरफ्लाई शेप। CrO5 अब जल्दी से बताओ, इस स्ट्रक्चर के बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? Chromium is forming 6 bonds with oxygen. 6. Chromium is forming 6 bonds with oxygen, and thus oxidation number of chromium should be +6. बड़े CrO5 बटरफ्लाई शेप या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद भी रखना है तुम लोगों को। Now next is CaOCl2। उस कंपाउंड का नाम किसी बच्चे को पता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। Baking soda. Commonly it is known as ब्लीचिंग सोडा। Bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर। commonly it is known as bleaching powder। ये मुझे ये पता है, कैल्शियम 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, क्लोरीन क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएंगे, लेट्स से, है ना, ऐसा है। तुम लोग कोशिश कर सकते हो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। हर एक कैल्शियम 2 बॉन्ड बना सकता है, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और हर एक क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा कुछ इस टाइप का। सो एज पर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, ये बस यही स्ट्रक्चर बन सकता है, CaOCl and Cl। अच्छा, यस अमोल, अच्छा इस स्ट्रक्चर के अलावा शायद कोई दूसरा स्ट्रक्चर कोई बच्चा बना नहीं पाएगा, गलती होने का कोई चांस नहीं है यहाँ, है ना। सो एज पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज कंसर्न, इट शुड बी +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसर्न, इट इज -2। as per this chlorine is concerned, its oxidation number is -1, and this chlorine is concerned, its oxidation number should be +1. Chlorine is more electropositive than oxygen, and chlorine is more electronegative than calcium. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे लिखा भी है ये सब? Yes, sir.